آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیلڈاٹ کے بورڈ اراکین کی ملاقات۔ بورڈ ممبران نے پیلڈاٹ کے امور بارے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمہوریت کی بہتری کے لیے کام کرنے پر پیلڈاٹ کے کردار کو سراہا۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ حسن بتائیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے پیلڈاٹ کے بورڈ اراکین کی ملاقات ہوئی۔ بورڈ اراکین نے سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، شاہد حامد اور احمد بلال محبوب شامل تھے، اور اس ملاقات میں وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھی موجود تھے۔ بورڈ ممبران نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پیلڈاٹ کے امور کے بارے تفصیلی طور پہ آگاہ کیا، اور خاص طور پہ گزشتہ الیکشن سے لے کر اب تک کے ہونے والے معاملات اور اب تک کے جو سرویز کیے گئے اور جو حکومتی کارکردگی بہتر ہوئی اس کے حوالے سے وزیر اعظم کو بھی آگاہ کیا کہ عوام کس حد تک جو ہے وہ حکومتی کارکردگی کو سراہتی ہے، یہ بھی ان کے سامنے داد و شمار رکھے گی۔ ان کو تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جمہوریت کی بہتری کے لیے کام کرنے پر پیلڈاٹ کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پیلڈاٹ جو ہے ان کے سروے سے ہم آگاہ ہوتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے کہ عوام ان کی ترجیحات کو جان چکی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ملک ایک عظیم بنے گا، اب ملک عظیم بننے کی راہ پر چل نکلا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملک میں مزید جو ہے وہ سرمایہ کاری بھی ہوگی اور حالات مزید بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ جی آپ کا شکریہ حسن۔ گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی افطار ڈنر میں شرکت۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، اسپیکر قومی اسمبلی ریاض صادق، سابق گورنر پنجاب چودھری سرور سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی افطار ڈنر میں شرکت کی۔ اس بارے تفصیلات جانتے ہیں محمد یاسین سے۔ بتائیے یاسین۔ گورنر پنجاب صدر مملکت آصف علی زرداری نے آج لاہور میں مصروف دن گزارا ہے، اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی گارڈن ٹاؤن میں آج آمد ہوئی، جہاں ان کے اعزاز میں نواب شہزاد احمد خان کی طرف سے افطار ڈنر دیا گیا۔ افطار ڈنر میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، اسپیکر قومی اسمبلی ریاض صادق، سابق گورنر پنجاب چودھری سرور، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، علی حیدر گرانی، مخدوم عثمان محمود، مخدوم مرتضیٰ محمود، علی پرویز ملک، حسن مرتضیٰ، میاں مصباح الرحمان، شہزاد سعید چیمہ، عبدالقادر شاہین، ندیم افضل چند، نواب بہاول خان، سمسام بخاری، نوریز شکور، چودھری ذکا اشرف، چودھری یاسین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پردیش اشرف کی زیر صدارت پیپلز انفارمیشن بیورو کا اجلاس۔ انفارمیشن بیورو کی حکمت عملی وضع کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ پارٹی کے شعبہ اطلاعات کو منظم کرنے پر خصوصی توجہ دینا ہوگی، پارٹی کے بیانیوں کو عملی شکل میں لانا ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد یاسین سے۔ بتائیے یاسین۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت آج گورنر ہاؤس میں انفارمیشن بیورو کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں ندیم افضل چند، جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ کے علاوہ شہزاد سعید چیمہ، فیصل میر، ثانیہ کامران اور دیگر نے شرکت کی ہے، اور جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ نے شرکاء کا تعارف اس موقع پر کرایا، اور سیکرٹری اطلاعات شہزاد سعید چیمہ نے انفارمیشن بیورو کی کارکردگی اور مستقبل کی حکمت عملی پر روشنی ڈالی۔ انفارمیشن بیورو کی حکمت عملی وضع کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی، اور راجہ پرویز اشرف نے اس موقع پر کہا کہ پارٹی کے شعبہ اطلاعات کو منظم کرنے پر خصوصی توجہ دینا ہوگی، اور پارٹی کے بنانے کی عملی شکل بنانے میں سامنے لانا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ سرگرم سوشل میڈیا کے بغیر ہم سیاست میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس موقع پر ندیم افضل چند نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں قیادت اور کارکردگی اور جو قیادت اور کارکن کے درمیان جو فاصلے ہے وہ ختم کرنے ہوں گے، اور ندیم افضل چند نے کہا کہ ترجمانوں اور سوشل میڈیا کے موبلائز اور ٹی وی پر جانے والے یاسین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وفاقی ٹیکس محتسب کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی سیمینار میں خصوصی شرکت۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی ادارے ملک کی ترقی میں اپنا کردار آسان طریقے سے ادا کر رہے ہیں، لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانے سے ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ یاسین اس بارے بھی اپڈیٹ کیجیے۔ گورنر ہاؤس لاہور میں وفاقی ٹیکس محتسب کے زیر اہتمام ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، اور وفاقی ٹیکس محتسب کو آسان اور جو پسماندہ علاقوں کے ٹیکس دہندگان کی شکایات کے لیے ازالے کے لیے خصوصی توجہ دینے کے لیے کہا گیا ہے، یہ کہنا ہے گورنر پنجاب کا۔ گورنر پنجاب نے اس موقع پر مزید کہا کہ وفاقی محتسب ٹیکس کے شعبے میں لوگوں کو ریلیف دینے میں اہم اور جو طاقتور ادارے ہیں،
ताकतवर दौर के तौर पर काम कर रहा है। गवर्नर ने कहा कि कौमी इदारे मुल्क की तरक्की में अपना किरदार ऐसे तरीके से अदा कर रहे हैं। गवर्नर का कहना था कि लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए मुल्क में बेरोजगारी का खात्मा मुमकिन हो सकता है। और गवर्नर का मजीद कहना था कि दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में दहशत गर्दों की बुज़दिलाना ये उनका बुज़दिलाना फेल है। गवर्नर ने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान बहादुरी से मुट्ठी बराबर कौम को और जो है दुश्मन नाज़र को जो मर्दी से मुकाबला कर रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि वतन की खातर अगर मुझे भी कुर्बान होना पड़ा तो मैं दरेग नहीं करूंगा। गवर्नर ने मजीद कहा कि दहशत गर्दी की हुकूमत के मुल्क में मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रहेगी और पूरी कौम फौज पाकिस्तान आपका शुक्रिया यासीन। ईदन मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब डीजी नैब लाहौर छुट्टी के बावजूद अहलिया के साथ ऑफिस पहुँच गए। एहतरामदार और उनकी अहलिया ने मुतासरीन को चेयरमैन नैब की तरफ से गुलदस्ते पेश किए। मुतासरीन ने ईद से कबल डूबी रकम की बरामदगी पर चेयरमैन नैब और डीजी का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान नैब लाहौर के मुताबिक ईडन स्कैंडल में मुतासरा खवातीन की सहूलत के लिए नैब की खवातीन ऑफिसर्स भी ड्यूटी पर मौजूद हैं। एहतरामदार का कहना था कि ईडन स्कैंडल के सैकड़ों मुतासरीन के लिए करोड़ों रुपए के चेक तकसीम किए गए हैं। मुतासरीन की आसानी के पेश नज़र स्टैम्प पेपर की शर्त ख़त्म कर दी गई। डीजी नैब ने ईद उल फितर से कबल एक और मेगा स्कैंडल में अहम रिकवरी और मुतासरीन में डूबी रकूम की तकसीम की खुशखबरी सुनाई। रमज़ान में संडे वाले दिन सब ज़ाहिर बात है ड्यूटी पे आके बैठे हुए सिर्फ हम लोग को फैसिलिटेट करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्पेशली ख़वातीन के लिए भी जो अरेंजमेंट है वो भी बहुत अच्छा किया हुआ है। डीजी नैब ने हमें बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया है। ये गाड़ी वाली शटल सर्विस जो है ये भी बड़ी अच्छी है। तो इससे पहले इन्होंने जो हमें पैसे दे दिए हैं ये हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। सब लोग जो हैं असिस्ट कर रहे हैं वहाँ राइट फ्रॉम रिसेप्शन अप टू दी पे चेक रिसीविंग। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी सर्विसेज हैं इस वक्त और हम खुश हैं, हैप्पी, वी आर हैप्पी विद विदिन लाइक हाफ एन आवर जो है ना हमें सारा प्रोसेस हो गया। और जो फ्रंट डेस्क वाले हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं। पिक एंड ड्रॉप सर्विस है और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ मेरा ख्याल है वहाँ से लेके यहाँ तक वो विदिन 5 मिनट्स जो है ना मुझे चेक मिल गया। बहुत पोलो क्लब के ज़ेरे तमाम 62वीं नेशनल ओपन पोलो चैम्पियनशिप बराए कायदे आज़म गोल्ड कप 2025 डीएस की टीम ने जीत ली। इख्तितामी लम्हात में ज़बरदस्त मुकाबले के बाद डीएस पोलो ने एफजी पोलो की टीम को 7-6 से हराया। इस मौका पर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान ख़ास शिरकत हुई। खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा बताइए इस बारे। उसामा अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। पोलो क्लब के ज़ेरे तमाम 62वीं नेशनल ओपन पोलो चैम्पियनशिप बराए कायदे आज़म गोल्ड कप 2025 डीएस की टीम ने जीत ली है। ये मनाज़र भी अब टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इख्तितामी लम्हात में ज़बरदस्त मुकाबले के बाद डीएस पोलो ने एफजी पोलो की टीम को 7-6 से हराया। इस मौका पर सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान ख़ास शिरकत हुई। मोहम्मद उसामा से मज़ीद जानते हैं। बताइए उसामा। बिल्कुल, लाहौर पोलो क्लब के ज़रिए तमाम बैंकल खिलाफ 62वीं नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप बराए कायदे आज़म गोल्ड कप टीम डीएस ने जीत लिया। फाइनल में जबरदस्त मुकाबले के बाद डीएस एफजी पोलो की टीम को 6-7 से हराया। और इसी तरह इस मौका पर मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी थे, उनके राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद खान, जबकि दीगर भी ऑफिसर मौजूद थे। फाइनल में एफजी पोलो टीम के 4.5 चक्कर तक डीएस पोलो पर बची थी, मगर इख्तितामी लम्हात में डीएस पोलो की टीम ने 2 जबरदस्त गोल करके मैच 6-7 के बड़े मार्जिन से जीतकर 62वां नेशनल एडिशन अपने नाम किया। और सदर ममलिकत पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जीतने वाली टीमों की हौसला अफजाई की, उनको ट्रॉफी और दीगर इनामात भी दिए। जी आपका बहुत शुक्रिया। ईद करीब आते ही शहर के बानो बाजार में रश बढ़ गया। खवातीन अपनी पसंद के कपड़े खरीदने के बाद मैचिंग ज्वेलरी की तलाश में नजर आई। मार्केट में दिलकश चूड़ियाँ, झूमर, चोकर और हार खवातीन को अपनी जानिब मुतवज्जा करने लगे। सामने से मज़ीद जानते हैं, बताइए सामने। बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर की बानो मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि खूब गहमा गहमी जारी है और खवातीन जो हैं वो ख़ास तौर पर अपनी ईद की शॉपिंग में खूब मगन दिखाई दे रही हैं। कपड़े तो उन्होंने ख़रीद लिए हैं और अब ये देख रही हैं कि अपना रुख ज्वेलरी की दुकानों की तरफ कर रही हैं। मैचिंग ज्वेलरी, झूमर, टिक्के और झुमके खरीदे जा रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी मैम, बताइएगा ईद करीब है, क्या खरीद रही हैं? बस बच्चों की चूड़ियाँ वगैरह ख़रीद रहे हैं और सैंडल्स वगैरह लिए हैं, बस यही। अच्छा, आप ये बताएं कि महंगाई में कितना डिफरेंस देख रही हैं पिछले साल की निस्बत इस साल? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत महंगाई है इस वक्त तो।
अच्छा, आप बताइए सर, यहाँ पर जो है खूब गहमा गहमी लगी हुई है, ईद करीब है, फैमिली के साथ आए हैं, क्या कहेंगे, रेट्स में कितना इजाफा देख रहे हैं? रेट में इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, महंगाई के हिसाब से इतनी है, ऑल ओवर रिसेशन है जितनी उस हिसाब से ठीक है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है, मार्केट के हिसाब से ना बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे यही देखा जा रहा है कि फैमिलीज भी जो हैं वो खूब मगन दिखाई दे रही हैं, ईद की जो है वो शॉपिंग यहाँ पर जारी है और ख़ास तौर पर बानो मार्केट में जो है वो ख़वातीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ईद के कपड़े ले लिए हैं, अब जो है वो जूते खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं और यहाँ पर खूब जो है वो रश लगा हुआ है। जी, आपका शुक्रिया सामिया। कॉर्बन बोश की जानिब से PSL में जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर को कानूनी नोटिस भेज दिया। कॉर्बन बोश को पेशावर ज़ल्मी ने PSL प्लेयर ड्राफ्ट में डायमंड कैटेगरी में मुंतखब किया था। PCB इंतजामिया ने लीग से अलहदगी के असरात और मुमकिन नताइज का भी खाका पेश किया। मोहम्मद उसामा से मज़ीद जानते हैं, बताइए उसामा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर कॉर्बन बोश को कानूनी नोटिस भेजा है। ये नोटिस कॉर्बन बोश की जानिब से HPL PSL में अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी करने के साथ भेजा गया। कॉर्बन बोश को पेशावर ज़ल्मी ने HPL PSL प्लेयर ड्राफ्ट में डायमंड कैटेगरी में मुंतखब किया, जबकि PCB इंतजामिया ने लीगल नोटिस से आपका शुक्रिया उसामा। गार्डन टाउन के इलाके में सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी के इफ्तार डिनर में शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर समेत दीगर रहनुमाओं ने भी इफ्तार डिनर में शिरकत की है। ये मनाज़िर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। गवर्नर पंजाब, स्पीकर कौमी असम्बली चौधरी सरवर समेत दीगर ने भी शिरकत की है। गार्डन टाउन का इलाका है जहाँ सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने इफ्तार डिनर में शिरकत की है। सिक्योरिटी के ख़ास इंतजाम किए गए हैं। इफ्तार डिनर में शिरकत के हवाले से आपको बताएं कि इस इफ्तार डिनर में साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर समेत दीगर अहम रहनुमाओं ने शिरकत की है। मियां मीर के इलाके में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 5 साल से नाकारा। माह सयाम में इलाका मकीनों को पानी के हसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना। प्लांट के गिरद मवेशी बांध दिए गए। इलाका मकीनों की हुकूमत से अपील है कि इलाके के वाहद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फ़ाल किया जाए ताकि दूर दराज इलाके से पानी भरने की परेशानियाँ ख़त्म हो सके। सामे सईद से मज़ीद जानते हैं, बताइए सामे। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मियां मीर कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पे अगर देखा जाए पानी जो कि एक बुनियादी ज़रूरत है और ख़ास तौर पर माह सियाम में पानी की मौजूदगी जो है वो अशद ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ का जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, एक तो ये इस इलाके का वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया और ये कोई 5-6 महीने से नहीं बल्कि 6 से 5 साल से जो है ये इसी तरह है, नाकारा है। और ना सिर्फ गैर फ़ाल है बल्कि यहाँ पर गंदगी और गलाजत के ढेर हैं। और अगर मेरे कैमरामैन शहबाज आपको दिखा भी सके तो यहाँ की सूरत हाल ये है कि गलाजत गंदगी के साथ साथ यहाँ पर जो है जानवरों को भी बांधा गया है, जबकि यहाँ के इलाका मकीन है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर माह रमज़ान में जो है दूर दराज से पानी लाना जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानते हैं किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर बताइएगा, माह सियाम चल रहा है, कहाँ से पानी लाते हैं? इलाके का तो ये वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है हमें पानी की, तो ये 4 से 5 साल हो गए हैं बंद है ये, तो हमें प्रॉब्लम होती है पानी के। फिर हम दूर जब ज़रूरत होती है तो दूर दूर से लाते हैं पानी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मुतलका महकमों को कोई शिकायत की गई हैं आपकी तरफ से? बहुत ज़्यादा की है लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हाँ जी बिल्कुल, माह सियाम चल रहा है और अफ्तार में जो है पानी चाहिए होता है और इस इलाके में जो है सैकड़ों की तादाद में रिहायशी मकानात हैं, इलाका मकीन रहते हैं, लेकिन पानी जो कि ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है उसी से ही ये लोग जो है महरूम है। दूर दराज से पानी लाना पड़ता है और उसके साथ साथ ये तो गैर फ़ाल है ही, लेकिन यहाँ पर जो है गंदगी ने भी अपने डेरे बसा लिए हैं। जी आपका शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की चमचमाती ट्रॉफी की नेशनल हॉकी स्टेडियम में रोनुमाई। लाहौर कलंदर की इंतजामिया की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों ने PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना का कहना था कि PSL ट्रॉफी को हॉकी के मैदान में लाना हॉकी की अहमियत को उजागर करना है। मोहम्मद उसामा से मज़ीद जानते हैं, बताइए उसामा। बिल्कुल, PSL सीजन 10 की जो ट्रॉफी है वो उसका टूर जारी है और इसी तरह लाहौर के मरले का आज आगाज हुआ है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में ट्रॉफी का टूर कराया गया। लाहौर के अंदर के CEO आतिफ राना और नेशनल हॉकी स्टेडियम में साबिक ओलंपियन ख्वाजा जुनैद ने हॉकी के हमरा जो है वो उनको बच्चों के साथ भी और के साथ फोटोशूट भी करवाया। इसी तरह लाहौर में 2 रोज़ा ये टूर होगा। इसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर यह ट्रॉफी का टूर जारी रहेगा। कराची से कल से आगाज हुआ था और आज लाहौर पहुंची। 2 रोज़ा टूर में आज पहले मकाम पर नेशनल हॉकी स्टेडियम में HPL PSL सीजन 10 की ट्रॉफी की रोनुमाई की गई, जबकि इसके बाद मज़ीद सूरत हाल जो है वो अगले दिन तक जारी रहेगी। जी आपका बहुत शुक्रिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ओन चौधरी की मुलाकात। वज़ीर ममलकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने वज़ीर-ए-आज़म को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ममलकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ओन चौधरी से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ओन चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल बारे आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ममलकत ओन चौधरी को वज़ारत से मुतल्लिक टास्क दिया। ओन चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म को टास्क मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में मरूफ कारोबारी शख्सियत मियाँ अहसन भी मौजूद थे। लाहौर के तारीख़ी विरसे की बहाली के लिए अथॉरिटी कायम कर दी गई है। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि पुराने लाहौर को असल हालत में बहाल करना ज़रूरी है, जबकि वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है कि कदीम लाहौर की बहाली पर काम कर रहे हैं। चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास शहर के तारीखी विरसे को बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। मोहम्मद नवाज शरीफ लहर की स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। लाहौर के तारीखी मकामात पर तजावजात की निशानदही और उन्हें हटाने पर इत्तेफाक। मोहम्मद नवाज शरीफ की तजावजात के मुतासरीन को कारोबार की मुतबादिल जगह और मुआवजा देने की हिदायत। लाहौर के हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए जामिया प्लान तलब। हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए शहर 6 जोन्स में तकसीम। शाह आलम मार्केट का भाटी गेट तक पैदल गुजरगाह बनाने की तजवीज पर गौर। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा, पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, इसे असल हालत में बहाल करना जरूरी है। शहरों की असल और कदीम हालत में बिगाड़ पैदा करना मुनासिब तर्ज अमल नहीं। तजावजात की वजह से अब कोई तारीखी बाजारों में जाना पसंद नहीं करता। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, कदीम लाहौर की बहाली पर काम कर रहे हैं। चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नजर आएगी। जगह जगह तजावजात से शहरों को बिगाड़ने की इजाजत नहीं देंगे। लाहौर के तारीखी दरवाजों को कदीम शक्ल में बहाल किया जाएगा। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि अंग्रेज दौर की 48 कदीम इमारतों पर काम जारी है। माल रोड पर सादत मंटो, शोरिश काश्मीरी और दीगर अदबी शख्सियात की रिहाइशगाहों को तख्ती लगाकर नुमाया किया जाएगा। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब पहला सूबा है जिसने एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। लाहौर में सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में शहर भर में तरक्याती काम कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का ताजपुरा में वाटर टैंक का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। बोले, ताजपुरा में बारिशी पानी के निकास के लिए प्लांट लगाने का मुतालिबा बहुत पुराना था। इलाके के लिए 1 अरब 5 करोड़ रुपए देने पर वज़ीर आला मरीम नवाज के मशकूर हैं। खिदमत, शराफत और जमहूरियत मुस्लिम लीग नून का नस्बुल ऐन है। पूरे पंजाब के तूल वर्ज में हेल्थ सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 का महकमा भी मेरे पास है। पंजाब वो पहला सूबा है जिसने एयर एम्बुलेंस शुरू की है, क्योंकि वो भी महकमा मेरे पास है। हम पूरे पंजाब में इस वक्त काम कर रहे हैं। इस वक्त लाहौर में एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बन रहा है 78 अरब रुपए का। ये दरीना मुतालबा जो यहाँ के तमाम ब्लॉक्स का था, बारिश में खास तौर पे जो पानी खड़ा हो जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 अरब 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो सिर्फ इन ब्लॉक्स के लिए, इनके बारिश के पानी के निकास के लिए लगाया जा रहा है। और मैं यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जमीन के नीचे एक बहुत बड़े कंक्रीट के हॉल की तामीर है। एक वाटर टैंक में 19 लाख गैलन और दूसरे वाटर टैंक में 21 लाख गैलन। तमाम ब्लॉक्स का सर्वे करके जो उसकी नेचुरल ग्रेविटी है, यानी उसकी जो स्लोप है, उसमें 3 वे चैनल बनाए जाएंगे जहां से बारिश का सारा पानी इन दोनों। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर वासा लाहौर का ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की तामीर का सिलसिला जारी। ताजपुरा में ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की तामीर का इफ्तिताह कर दिया गया। मंसूबे पर 1 अरब 5 करोड़ रुपए लागत आएगी। निकासी आपके देरीना मसाइल का मुस्तकिल हल। वज़ीर आला मरीम नवाज की खुसूसी हिदायत पर वासा लाहौर ने ताजपुरा के इलाकों में ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की तामीर का आगाज कर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद और MD वासा गुफरान अहमद के हमरा इफ्तिताह किया। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इस मौके पर कहा कि निकासी आपके देर बहाल के लिए ये मनसूबा वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से ताजपुरा के आवाम के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। ये दरीना मुतालबा जो यहाँ के तमाम ब्लॉक्स का था, बारिश में खास तौर पे जो पानी खड़ा हो जाता था, ये 1 अरब 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो सिर्फ इन ब्लॉक्स के लिए, इनके बारिश के पानी के निकास के लिए लगाया जा रहा है। और मैं यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। MD वासा गुफरान अहमद ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 22 लाख और 19 लाख गैलन के 2 ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स ताजपुरा में तामीर किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा टैंक है और इसमें 4 मिलियन गैलन पानी स्टोर होना है। 2 टैंक बनने हैं
दो डिफरेंट जगह पे, जिसमें बी और डी ब्लॉक दोनों का पानी स्टॉर्म वाटर जो इधर इकट्ठा होता है वो इन टैंक में इकट्ठा होगा, ड्रेन्स बनेंगी, वो 5500 फुट RFT के करीब ड्रेन बनाएंगे, वो पानी ड्रेन्स टैंक्स तक लेके आएंगे, टैंक से पंप होंगे, एक तो फिल होंगे, रिचार्जिंग भी होगी, यानी जो पानी स्टोर होगा वो ज़मीन अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जिंग भी उससे होगी। वासा लाहौर निकासी आप के मसाइल के पायदार हल के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रहा है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने कहा कि तरक्याती प्रोग्रामों की बरवक्त तकमील और गैर मामूली मेयार को यकीनी बनाया जाए। ज़िला इंतजामिया शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए पुरज़्म है। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास, जिसमें लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले मरहले की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। COMCL MD वासा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर भी इजलास में शरीक हुए। वासा और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स ने तफसीली ब्रीफिंग दी। DC लाहौर ने तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद तोड़ फोड़ रोकने पर जोर दिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं वज़ीर आला मरीम नवाज़ की क़यादत में आवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। हुकूमत पंजाब गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन कर रही है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की अल मक्की अल मदनी डायलिसिस सेंटर आमद, सेमिनार में शिरकत की और यादगारी शील्ड्स तकसीम की। डॉक्टर जमील, मुनीर हुसैन शाहिद, शेर अफजल, अब्दुलसलाम, सदाकत अली, इम्तियाज़ बेग, मलिक हमीद और मियाँ बशीर शाहीन समेत दीगर समाजी और सियासी शख्सियात ने सेमिनार में शिरकत की। वज़ीर सेहत का कहना था कि खिदमत खल्क करने पर डायलिसिस सेंटर की इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की क़यादत में सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक खिदमत इंसानियत से बड़ा कोई जज्बा नहीं है। हुकूमत पंजाब गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन कर रही है। आज अल मक्की अल मदनी सोसाइटी में आके मुझे बहुत खुशी हुई है, रूहानी खुशी हुई। और आप इतना खूबसूरत काम करें कि जो भी आपको इसका दफ़ा आएगा फिर वो आप ही का होकर रह जाए, उसके लिए जाना मुमकिन नहीं है। हम इस वक्त हेल्थ पे जो काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि सिस्टम को बेहतर करें। CM साहबा बहुत ऑनरशिप दे रही हैं और हर हफ्ते हमारी कई घंटे की मीटिंग है जिसमें सवाल जवाब होता है, सजा जजा होती है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है, कभी कोताही भी होती है। देखें, आपने जब इलीगैलिटी को रोकना है तो आपको लीगैलिटी को खोलना पड़ेगा, वरना गैर कानूनी काम बंद ही नहीं हो सकता। लोगों की जिंदगी का मामला है। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने अपना फोकस सेहत के शोबे की बेहतरी पर मरकूज कर रखा है। कैमरामैन उमर रईस के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत का रमज़ान में अहसन इकदाम, शहर के सहूलत बाज़ारों में ख़रीदारों का रश, अशिया खुरनोश 10% कम कीमतों पर वाफर दस्तयाब। शहरी कहते हैं सहूलत बाज़ार में तमाम अशिया आसानी मिल रही हैं। पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ के फरहामी में पेश। शहर के सहूलत बाजारों में खरीदारों का रश, अशिया खुरनोश 10% कम कीमतों पर वाफर दस्तयाब। ईरानी सेब का DC रेट 290 रुपए फी किलो मुकर्रर। सहूलत बाजारों में सेब 280 रुपए फी किलो फरोख्त। केला दर्जे अव्वल का सरकारी रेट 260, मगर सहूलत बाजारों में ये 250 रुपए दर्जन बिक रहा है। अनार दानेदार का DC रेट 445 रुपए मुकर्रर, जबकि सहूलत बाजारों में 425 रुपए फी किलो फरोख्त। शहरी कहते हैं कि सहूलत बाजारों में मियारी अशिया बआसानी सस्ते दामों फरोख्त की जा रही हैं। यहाँ पे फल फ्रूट सब्जी जितनी भी हैं बहुत सस्ते रेट में मिल रही हैं। बाजार में तो बहुत महंगी हैं, यहाँ पे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है, सस्ती हैं। कम से कम 20-30 का फ़र्क यहाँ पे नज़र आ रहा है। मार्केट में चीनी 180 है, यहाँ 130 है, 50 रुपये किलो का फ़र्क। हम मरीम नवाज़ के इतने इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि इतने बाजार सस्ते लगाए हैं और हर चीज़ यहाँ पर मिल रही है। मॉडल बाजार इंतजामिया का कहना है कि सहूलत बाजारों में सफाई का खास ख्याल रखा जा रहा है और शिकायत सेल भी कायम किया गया है ताकि आवाम को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन जिशान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। आवाम को रिलीफ फराहम करने का आज़म, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। ताहम पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। इजाफी रकम बिजली के बिलों में कमी लाने पर खर्च की जाएगी। हुकूमत आवाम को रिलीफ की फरहमी के लिए पुरअज़्म, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। ताहम पेट्रोल लेवी में 10 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपए कर दी गई। लाइट डीजल पर लेवी 7 रुपए 75 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। मट्टी के तेल पर लेवी में 10 रुपए 96 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई ऑक्टेन पर लेवी 50 रुपए फी लीटर कर दी गई। ज़राए का कहना है कि लेवी बढ़ाने से 16 रोज में 50 अरब रुपए की आमदन मुतवक्की है। हुकूमत इजाफी रकम बिजली के बिलों में कमी लाने पर खर्च करेगी। शहरियों को कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखना अच्छा इक़दाम है। हुकूमत को चाहिए कि वो रमजान में लोगों को ज्यादा रिलीफ फराहम करे। जो उनको बेहतर लगता है उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन है तो जिस तरह की महंगाई है उसमें तो कम करना चाहिए। हर तरफ से महंगाई है,
तो कम अज़ कम इन्हें चाहिए कि कम वगैरह करें। कम होनी चाहिए लेकिन अभी तक कम नहीं हुई। तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, ईद के बाद कुछ हो तो हो, अब गरीब अवाम ही पिसती है, आपको पता है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है। चीनी के नर्ख में तेज़ी का रुझान बरकरार। ऐब माह के दौरान चीनी 15 रुपये फ़ी किलो महंगी कर देगी। चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा मौजूद। चीनी के दाम काबू में ना आए। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक भी एक माह में चीनी 15 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। लाहौर में चीनी 175 से 180 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त होने लगी। शुगर मिल से 100 किलो की बोरी का औसत रेट 16,700 रुपये है। होलसेल मार्केट में 100 किलो चीनी की बोरी की कीमत 17,200 रुपये है। अवाम कहते हैं आए रोज चीनी महंगी हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। चीनी का रेट जो है ना, जो सहूलत बाजार लगाए हैं वहाँ पे 130 रुपये है, जो आम परचून वाले हैं ये 100 तो मतलब 80 है, 70 भी है किसी के पास। अपने रेट लगाए हुए इन्होंने। महंगाई है लेकिन इतनी भी महंगाई नहीं कि एकदम चीनी का रेट इतना ज़्यादा कर दिया इन्होंने। चीनी के नर्ख में मजीद इजाफे का खदशा भी मौजूद है, जबकि नए क्रशिंग सीजन में गन्ना महंगा होने को भी महंगाई का सबब करार दिया जा रहा है। कैमरामैन अदनान हसन के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महंगाई के सताए अवाम ने सस्ती खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। छुट्टी के रोज़ लंडा बाजार में रश, लोग कपड़े और जूते खरीदने में मसरूफ दिखाई दिए। लंडा बाजार में महंगाई के हवाले से शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। महंगाई के मारे अवाम सस्ती खरीदारी के मुतलाशी। छुट्टी के रोज लंडा बाजार में रश लगा रहा। लोग सस्ते कपड़ों और जूतों की खरीदारी में मगन दिखाई दिए। शर्ट 700 रुपए तक मिल रही है। जूते 1000 रुपए से जायद में ही दस्तयाब हैं। पैंट भी 1000 रुपए से कम नहीं मिल रही। लंडा बाजार में आए शहरियों का महंगाई के हवाले से मिला जुला रद्द-ए-अमल। कुछ शहरियों ने चीजें महंगी होने का शिकवा किया तो बास कीमतों के हवाले से मुतमईन दिखाई दिए। महंगाई बहुत ज्यादा पाकिस्तान में आपको पता अरूज पे है, और मेरे ख्याल से जो चीज़ें हैं, जो बेहतर चीज़ें हैं, वो तो आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। तो लंडा बाज़ार इसलिए आए हैं ताकि कुछ मुनासिब प्राइस में कंफर्टेबल चीज़ देख सकें। यहाँ एक तो ये फ़ायदा होता है, ब्रांडेड चीज़ होती है, लेकिन आजकल खान साहब जितने भी हैं इन्होंने भी बहुत रेट अप किए हुए हैं। जनाब बात यह है कि ये मैंने पिछले साल 1100 का लिया था, अब मैंने यहाँ से 750 को लिए। परसों भी ले के गया मैं, आज भी ले गया। रेट मुनासिब है, हर चीज़ की रेट जो मुनासिब है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई में कमी की जाए ताकि बुनियादी अशिया आम आदमी की पहुँच में आ सकें। कैमरामैन उमैर रईस के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़।